Hello students, let's talk about one of the important topic of the second chapter of geography, physical features of India, that is theory of plate tectonics. In the book, this theory is given in very briefly. Okay, but I am going to discuss this theory in little bit detail so that you could get a lot of information about this theory, which is very important and which played a very important role. This theory has explained, actually it has explained the formation of earth through plate tectonics. See students, we all know that in the earth we are having a varied landforms. Different types of various forms of landforms are there, such as mountains, valleys, desert, plateaus, islands, etc. So what are the reason behind the existence of these varied landforms on the earth? And how the formation of the earth has taken place? Why somewhere we find the mountains, somewhere we find the rift valleys, inside the ocean you will find the mountains, and even you will find the volcanic mountains inside the ocean also. On the earth crust also you will find the volcanic mountains. So what are the reason behind the formation of these landforms? This is betterly explained in the theory of plate tectonics. But before the theory of plate tectonics, let's talk about another important theory, which in fact on the basis of this theory the theory of plate tectonic was formalized. See, that was the theory of continental drift. This theory, according to this theory, some 225 million years ago, the whole earth there was a single landmass that was known as Pangaea. पैंजिया विच वाज नोन एज द सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब पूरी दुनिया में एक ही लैंड फॉर्म था जिसको पैंजिया कहते थे, और उसके चारों तरफ एक ओशियन होता था जिसको पैंथलासा कहते थे. ठीक है. आफ्टर 200 आफ्टर 20 we find 25 millions year, that means in 200 millions ago we find this Pangaea, this supercontinent split into two main land masses, that is, see here, Laurasia in the north and Gondwana land in the south. That means ki due to some reason, what was the reason? That is not explained in the theory of continental drift. It only says that due to some reasons Pangaea was divided into two main landmass, Laurasia in the north and Gondwana in the south. See, Laurasia consists of Asia, Europe and North America, and Gondwana land consisted of Africa, Australia, Antarctica, South America and India. Laurasia is also known as Angara land. Somewhere you will find Angara land, which is Laurasia. Now, then afterwards what happened? The Pangaea was divided into two main body, and later on this body was further split up into different types of bodies. मतलब Pangaea जब दो प्लेट में बटा, दो बॉडी में बटा, बाद में वो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया भी जो है ना अलग अलग प्लेट्स में बट गया. सी हियर, यू विल सी हियर, दिस इज द लॉरेशिया in the northern part and Gondwana land. See, so Pangaea, which was a supercontinent, was divided into two parts, Gondwana land and Laurasia. So the theory of continental drift is an early predecessor of the theory of plate tectonics, and it states that all present continental masses were once connected as single land unit called Pangaea. मतलब पूरी दुनिया में एक ही लैंड मास था जिसको पैंजिया बोलते हैं, और उसके चारों तरफ एक ओशियन था जिसको पैंथलासा कहते हैं. ठीक है. बाद में पैंजिया क्या हुआ आप समझ गए, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो भाग में बटा, और जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बटा तो यहाँ पे देखिए आप बीच में है ना एक छोटा सा समुद्र बना जिसको टेथिस सी कहते हैं. ठीक है, एक समुद्र बना जो ओशियन से छोटा होता है, सी. यहाँ पे देखिए आप, ये इसको हम लोग कहते हैं टेथिस सी, विच वॉज फॉर्म बिटवीन गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया. इसको आप लोग याद रखेंगे टेथिस सी, क्योंकि इसी टेथिस सी का बाद में फोल्डिंग की वजह से, है ना, फोल्डिंग प्लेट्स, जब प्लेट्स फोल्ड किए थे टेथिस सी में तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये थ्योरी का एक वीकनेस ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कि दिस
थ्योरी लैक्स प्लॉजिबल ड्राइविंग मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्टिनेंट्स हैड ड्रिफ्टेड। मतलब ये थ्योरी ये बता नहीं पाती है कि जब ये प्लेट्स में बटे तो प्लेट्स मूव करने लगे, ठीक है। ये प्लेट जब मूव किए ना तो या तो ये अलग हुए या फिर ये टकराए। अलग होने से कुछ लैंडफॉर्म्स बने, टकराने से भी कुछ लैंडफॉर्म बने, जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। दैट इज एक्सप्लेन बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू प्लेट्स दैट राइड और फ्लोट ऑन द एस्थेनोस्फीयर। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि ये जो अर्थ जो है ना बहुत सारे प्लेट्स में बट गए थे, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया बहुत सारे प्लेट्स में बट गए थे। ये फ्लोट करते हैं कहाँ पे? एस्थेनोस्फीयर में, मतलब लिथोस्फीयर के नीचे। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ज़मीन के नीचे और मोल्टेन रॉक्स पाए जाते हैं मैंटल और आउटर कोर में, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो जैसे एक लकड़ी पानी में फ्लोट कर रहा है ना, उसी तरह हमारा अर्थ भी है ना, मतलब जो पिघला हुआ गर्म रॉक्स के ऊपर जो है ना हमारा अर्थ क्रस्ट भी जो है ना वो फ्लोट कर रहा है। ये थ्योरी क्या कहता है कि दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स स्टेट्स दैट द पीसेज ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। मतलब हमारा अर्थ क्रस्ट जिसमें हम चलते हैं ना वो धीरे धीरे करके मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है ना। और कई साल लग जाते हैं जब ये पूरी तरह से ड्रिफ्ट करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, कई साल लगे। और यही प्लेट्स जब आपस में टकराए ना तो ये वोल्केनो माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। कहा जाता है कि हर साल कम से कम 5 सेंटीमीटर हर साल ये प्लेट्स मूव करते हैं। तो ये थ्योरी क्या बता रहा है कि प्लेट्स मूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। प्लेट मूव करने के पीछे कारण ये इन्होंने बताया क्या? इसी थ्योरी ने बताया, कन्वेक्शन करेंट्स इन द मेंटल। मतलब आपको पता है कि अर्थ का 3 लेयर है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिस पे हम लोग चलते हैं दैट इज नोन एज क्रस्ट, उसके नीचे है मेंटल, उसके नीचे है कोर। मेंटल जो होता है ना, मेंटल में काफ़ी मतलब कि करंट होते हैं। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं, हीट करंट होते हैं, हीट वेव्स होते हैं। मोल्टेन रॉक्स वहाँ पाए जाते हैं, गर्म पूरा वहाँ का रॉक्स होता है। और वो हीट जब ऊपर उठता है टेम्परेचर राइज होने की वजह से, है ना, तो क्रस्ट से वो टकराता है। और क्रस्ट से टकराने की वजह से क्या होता है कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, जिसके तहत ये बताया गया है कि द व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स। द रीजन बिहाइंड दिस दैट द इंटेंस हीट, सी हियर, intense heat generated by radioactive substances in the mantle seeks a path to escape and gives rise to the formation of कन्वेंशन करेंट इन द मैंटल सॉरी। तो मैंटल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं, और उसी से जो हीट जो गर्मी निकलती है और जब वो ऊपर जाती है, ठीक है ना, ओके, तो वो कन्वेक्शन करेंट्स फॉर्म करती है। और वही जब क्रस्ट से टकराती है ना, है ना, तो भी क्रस्ट को वो जो है ना डिस्टर्ब करती है। मतलब क्रस्ट के प्लेट्स जो है ना वो मूव करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हीट फ्रॉम द कोर एंड द मैंटल इटसेल्फ कॉजेज कन्वेक्शन करेंट इन द मैंटल। और यही दिस कॉजेज द टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव। यही टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है। हमारा अर्थ बहुत सारे प्लेट्स में बटा हुआ है ना, उसी को वो मूव करने के पीछे जो है ना कन्वेक्शन करेंट्स का ही सबसे बड़ा कारण है। और दैट ऑल्सो कॉजेज वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स ऑल्सो। सी हियर, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द वर्ल्ड वाज देयर वेयर 7 major plates and some minor plates, such as major plates were Eurasian plates, African plates, Indian Australian plate, Pacific plate, North African plate, North American plate, South American plate, etc. according to the theory of tectonic plate। देखिए प्लेट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओशियानिक प्लेट, जो पानी वाला प्लेट होता है, जो समुद्र, जैसे पैसिफिक प्लेट, ये ओशियानिक प्लेट था। और ये जो लैंड जमीन वाले जो प्लेट होते हैं उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेट्स 2 तरह के होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियानिक प्लेट, ठीक है। और ये प्लेट्स वही मैंने अभी आपको बताया कि मैंटल में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है और वो जब हीट ऊपर आने लगता है तो इससे क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो, है ना, ड्यू टू द राइज ऑफ दिस कन्वेक्शन करेंट वी फाइंड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। अब मूवमेंट 3 तरह का होता है। देखिए ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हुआ, कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ, डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ। ये क्या होता है? देखिए या तो प्लेट्स जब मूव किए ना तो या तो ये प्लेट्स आपस में टकराएं, या फिर ये प्लेट्स
एक दूसरे से अलग हुए, और या फिर ये प्लेट्स जो है ना एक दूसरे से टकराते हुए अपोजिट डायरेक्शन में गए। देखिए कन्वर्जेंट प्लेट, सबसे पहले आप देखिए कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट क्या होता है? प्लेट दैट कम्स टूवर्ड्स ईच अदर, कुछ प्लेट्स आपस में टकराए, विच इज नोन एज फोल्डिंग। This is known as folding, and this led to the formation of mountains, volcanoes, trenches, etc. in the earth. Second, where the divergent plane means plate moves from each other. कुछ प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग हुए, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्टिंग। ओके, प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, फॉल्टिंग, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, वाइडनिंग ऑफ सी एक्सेट्रा। मतलब आप देखिए प्लेट जब अलग हुए तो वैली का फॉर्मेशन होता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ, समुद्र की चौड़ाई जो है ना वो बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जब प्लेट्स टकराए, ठीक है, जब प्लेट्स टकराए तो इतनी ज़बरदस्त वो टक्कर हुई है ना कि जितने भी अर्थ में जो सेडिमेंट्स थे वो सब ऊपर उठ गए, और ऊपर उठ के वोल्केनो बन गए या माउंटेन्स बन गए। समुद्र के नीचे जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराए, क्योंकि समुद्र में तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होता है, तो समुद्र के नीचे जो प्लेट्स टकराए वो समुद्र के नीचे पहाड़ बना दिए, ठीक है। कुछ प्लेट्स ऐसे हुए दैट मूव्स पास्ट ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, कुछ प्लेट्स जो है ना एक दूसरे से टकराते हुए अपोजिट डायरेक्शन में गए, है ना। एक नॉर्थ की तरफ चला गया, एक साउथ की तरफ चला गया, एक दूसरे से टकराते हुए। तो इससे क्या हुआ ना, अर्थक्वेक, इसी से अर्थक्वेक भी आता है। और पहले अर्थ में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हैं जिससे पूरी की पूरी स्पीसीज ही खत्म हो गई है। आज भी अर्थक्वेक आते हैं जिसके पीछे ट्रांसफॉर्म प्लेट्स का ही सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो दिस प्लेट मूवमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कन्वर्जेंट प्लेट, व्हेन प्लेट कम्स टुवर्ड्स ईच अदर, विच इज नोन एज फोल्डिंग, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वोल्केनोज, ट्रेंचेज एक्सेट्रा। देन डाइवर्जेंट प्लेट्स, प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज फॉल्टिंग, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, वाइडनिंग ऑफ सी एक्सेट्रा। ट्रांसफॉर्म प्लेट, प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस कॉजेज अर्थक्वेक, ठीक है। ये होता है प्लेट मूवमेंट को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहता है कि प्लेट्स जब मूव करने लगे तो आपस में या तो टकराए, कुछ प्लेट्स आपस में टकराए, कुछ एक दूसरे से अलग हुए, और कुछ एक दूसरे को टच करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो डाइवर्जेंट मैंने अभी आपको बताया, देखिए पहला है डाइवर्जेंट, सी डाइवर्जेंट। प्लेट्स जब अलग हुए तो क्या हुआ? प्लेट्स मूव अपार्ट इन ओशियन एंड ऑन लैंड प्रोड्यूस मिड ओशियन रिजेस, रिफ्ट वैलीज, वोल्केनोज, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। प्लेट्स जब अलग हुए तो समुद्र के नीचे, जब ओशियनिक प्लेट्स अलग हुए तो समुद्र में चेन ऑफ माउंटेन्स बने, है ना, जमीन में वैलीज बन गए, ठीक है। अर्थक्वेक कभी आने का चांसेस हुआ इसकी वजह से। वोल्केनो का फॉर्मेशन कैसे हुआ पता है? जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियनिक प्लेट्स जब टकराए तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ना वो ज़मीन के नीचे चले गए। नतीजा क्या होगी? ज़मीन के नीचे जो है ना पानी जमा हो गया, और ज़मीन के नीचे के टेम्परेचर की वजह से पानी जो है ना खौलने लगा, और वही जब टेम्परेचर राइज करता है ना तो फिर वो पानी जो है ना ज़मीन के ऊपर से निकलता है, ठीक है। और वही पहाड़ के जब ऊपर से वो मैग्मा निकलता है, मोल्टेन रॉक्स निकलता है, तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज वोल्केनिक इरप्शंस। तो वोल्केनो वाज मेनली फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ द कोलाइजन ऑफ द ओशियानिक प्लेट एंड दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। उसके बाद देखिए कन्वर्जेंट, जब प्लेट्स आपस में टकराए, यहाँ पे पहले देखिए सीसी कोलाइजन, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकराए, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराए तो माउंटेन्स हुआ, अर्थक्वेक भी आए, अब माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। देन देखिए ओ सबडक्शन, ओ सबडक्शन मतलब होता है जब दो ओशियानिक प्लेट्स कोलाइड किए, जब दो ओशियानिक प्लेट्स कोलाइड किए तब क्या हुआ? मैंने आपको बताया डीप ओशियन ट्रेंचेस, समुद्र के नीचे घाटी बन गई, खाई बन गई, जिसको हम लोग ट्रेंचेस कहते हैं, ठीक है। अगर आप समुद्र के नीचे जाओगे ना तो कई जगहों पे आपको ट्रेंचेस मिलेंगे, मतलब जमीन, मतलब क्या है कि समुद्र के नीचे भी ज़मीन है ना, और उस ज़मीन में जो है ना आपको बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, है ना, बहुत दूर तक फैले हुए वो गड्ढे, और बहुत गहराई है उसमें, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेंचेस कहते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द कोलाइजन ऑफ ओशियानिक, टू ओशियानिक प्लेट्स। आइलैंड आर्क्स भी बने ओशियंस में। उसके बाद देखिए नीचे कन्वर्जेंट, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराए, मैंने आपको बताया, तो दैट फॉर्म्स डीप ओशियन ट्रेंचेज एंड वोल्केनिक कोस्टल माउंटेन्स। समुद्र के नीचे और लैंड में, ज़मीन में भी, है ना, हम लोग देखते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन्स जो है ना वो बने। पैसिफिक ओशियंस के पास आसपास के आइलैंड्स में आपको बहुत सारे वोल्केनोज मिलेंगे। दैट वाज मेनली द रिजल्ट ऑफ द कोलाइजन ऑफ बोथ द ओशियानिक एंड दैट ऑफ द
continental plates. So that was the reason why we find the formation behind the formation, and theory of plate tectonics is one of the theory तो which is largely approved by everybody. सबने इसको अप्रूव किया है और इस थ्योरी को एक सबसे बेस्ट थ्योरी मानी गई है, विच एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेशंस ऑफ द वेरिड लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. ठीक है, और इसी टेक्टोनिक्स की वजह से, इसी कन्वर्जेंट की वजह से जो है ना, वी फाइंड द प्रेजेंट टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुला प्लेट्यूज इन आवर कंट्री. हमारे देश में जो पेनिनसुला प्लेट्यूज आप देखते हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स है, हिमालय, ये सब का फॉर्मेशन हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ दिस कोलाइजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. ओके, तो होप hope you have got the content of this theory of plate tectonics. Thank you, students.